Hello students, today we are going to start with 12th economics. This is divided into two parts, macroeconomics and Indian economic development. In this we'll be starting off with Indian economic development, which will be of 40 marks on your syllabus. In this, the first unit is for 12 marks, that is development experience between 1947 to 1990 and economic reforms since 1991. In this, we will be starting with the depiction of the condition of Indian economy when India got independence in 1947. Then the condition of Indian economy in various sectors like agriculture, industry, infrastructure or demographic features, etc. We'll go through the details of these, that is agriculture, industry, foreign trade, etc. and then we'll proceed to the new economic policy. This unit will cover the period before the Britishers, during 1947 and then 1947 onwards. इसमें हम इंडियन इकोनॉमी को 3 स्टेजेस में स्टडी करेंगे. सबसे पहले बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड देन in the second stage during 1947 when India got independence. Then last we'll be studying India's condition after 1947. So first of all, we'll start off with the first part, that is what was the condition of Indian economy before the arrival of Britishers. इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश की कैसी कंडीशंस थी. सो हम बहुत समय से ये सुनते आ रहे हैं कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया कहलाता था. So Indian economy before the Britishers was a very rich and prosperous economy. It was self-reliant, मतलब वो अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लेते थे, उन्हें किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था. Agriculture was the main occupation of the people. Apart from this, India was doing very well in manufacturing activities as well. It was well known for its handicraft industry, especially cotton, silk textile, metal and precious stones, etc. इंडिया की दूसरे देशों में अपनी क्वालिटी को लेकर बहुत अच्छी रेपुटेशन थी. इंडिया का जो क्राफ्ट्समैनशिप का, हैंडीक्राफ्ट्स में, हाथ के काम में इंडियंस का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई माना जाता था. According to a French traveler, Bernier, Indian economy was very rich. The 17th century Bengal was richer than Egypt. हमारा देश जो है 17th century में इजिप्ट से भी जो था वो अमीर था. ये कॉटन, सिल्क एट्सेट्रा एक्सपोर्ट करता था और जो सामान प्रोड्यूस करता था वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए था. Apart from this, India used to have very good system of irrigation, as many canals were cut from Ganga for navigation and irrigation. Then we come to the second stage, which marks the beginning of the British rule. हमारे देश में British rule शुरू हुआ Battle of Plassey, which was in 1757. उस वक्त अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ जो थी वो अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए थी. उनका मेन मकसद अपने देश को ग्रो करना था, अपनी इंटरेस्ट्स को फॉलो करना था. देयर इंटरेस्ट्स वर वेरी सेल्फिश. उन्होंने हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया था. सो दे वर बेसिकली प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स rather than the development of Indian economy. With this, they made some fundamental changes in the structure of Indian economy, जिसमें उन्होंने हमारे देश को एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, और जहाँ से सब चीज़ें, बेसिक रॉ मटेरियल्स जो थे वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और फिनिश्ड गुड्स जो थे वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में तैयार होकर हमारे देश में आ रहे थे. सो इंडियंस
became supplier of raw material and consumer of finished products of Britain. इसके अलावा हमारे देश में कुछ भी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं किए गए. जो भी एफ़र्ट्स किए थे वो इंडिविजुअल एफ़र्ट्स थे एंड दे वर वेरी कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट, जिसमें जो मेन एस्टिमेटर्स थे वो थे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले शिराज, VKRV राव, RC देसाई. इनमें से VKRV राव के जो एस्टिमेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है. मेजर स्टडीज़ जो उन्होंने की थी उसमें ये कंक्लूड किया गया कि हमारे देश में 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में द एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2%, while the growth in per capita output per year was 0.5%. Now we will start with the features of Indian economy on the eve of independence. Our economy was an agricultural economy which was backward and its productivity was very low. हमारे देश की खेती बहुत पिछड़ी हुई थी और उसकी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, क्योंकि कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा था. इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी. द ग्रोथ रेट वाज वेरी लो. इसमें कोई भी एफर्ट नहीं किया गया था इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, आवर इकोनॉमी वाज characterized by backwardness. It had low per capita income and majority of the population was poor. There was widespread unemployment over here. This backwardness was in agriculture as well as in industrial sector. So first of all, we'll take up agricultural backwardness. In agriculture, the contribution to GDP was very low. हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो खेती में कार्यरत थी, लेकिन फिर भी इसकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत ही कम थी, बिकॉज द पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो. फूड ग्रेन्स वर नॉट इनफ फॉर सेल्फ सब्सिस्टेंस. हमारी खाना जो था, फूड ग्रेन्स जो क्रॉप्स हम उगा रहे थे, वो हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं थी. ये वही इंडिया है जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले अपनी सारी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लेता था. इट यूज़ टू बी सेल्फ रिलायंट. कमिंग टू इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, देयर वाज लैक ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़. अंग्रेज़ों ने अपने देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में किसी भी तरह की हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं किया था. इसके साथ साथ उन्होंने हमारी जो एक्सपर्टाइज़ थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था. क्योंकि हम मेजरली अंग्रेज़ों से मिल रहे फिनिश्ड गुड्स पे डिपेंडेंट थे, सो देयर वाज नॉट मच प्रोडक्शन ऑफ एनी कैपिटल गुड्स. हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ बहुत ही पिछड़ी हुई थी, उनकी डेवलपमेंट बहुत कम हो रही थी. दे वर बेसिकली प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स. लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही प्रोड्यूस कर रही थी. दे वर नॉट इनटू कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ बहुत लिमिटेड थी और जो स्मॉल और बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी. ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो थी वो इंडस्ट्रीज़ में से हमारे देश में नहीं आ रही थी. द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी वाज वेरी पुअर. The means of transport, communication, electricity were very poor. अंग्रेज़ों ने रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज़ इनको डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन जितनी हमारी ज़रूरतें थीं उसके हिसाब से ये बहुत ही कम थी. और जितनी भी उन्होंने कोशिश की वो उनके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए थी, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं थी. अगला फीचर जो हमारे पास आता है वो है पॉवर्टी. हमारा देश बहुत ही गरीब था, पॉपुलेशन बहुत गरीब थी, लो पर कैपिटा इनकम था, लोग अनपढ़ थे, बेरोज़गार थे, इसी के कारण वो गरीब थे. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत ही
लो था। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी अपने लिए नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे। हम अपनी ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते थे। सो वो चाहे मशीन्स का हो या प्रोडक्शन से जुड़ी हुई बाकी इक्विपमेंट्स का या डिफेंस से जुड़ी हुई इक्विपमेंट्स का, और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स के लिए भी हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंड होना पड़ता था। इलिटरेसी हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। हमारी पॉपुलेशन अनपढ़ थी। अनपढ़ होने की वजह से वो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या किसी भी और सेक्टर में वो कोई मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से देश में गरीबी थी और हमारी लेबर की जो क्वालिटी थी, इट यूज़ टू बी इनएफिशिएंट, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे थे। लोग जो थे वो ज़्यादातर गांव में रहते थे बिकॉज़ एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। सो खेती के काम के लिए वो गांव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि खेती के अलावा लोगों के पास और कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कोई एवेन्यूज़ नहीं थे। इसलिए लोग गांव छोड़ के शहर में आना पसंद नहीं करते थे। हमारी इकोनॉमी एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, विच वॉज़ अ मिक्स ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर बैकवर्डनेस हुई क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम रह गई। India was a colony of the Britishers, so it was referred to as a colonial economy. India had to face exploitation in every field. हमें हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमें हर सेक्टर में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और हमारे सारे सेक्टर्स जो थे वो पिछड़ रहे थे। एग्रीकल्चर बहुत बुरी हालत में था, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से की, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सो इसलिए हम हर तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे। सो इंडिया टर्न्ड आउट टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये इसकी वजह से हमारे जो इंडियन आर्टिसंस थे, जो पहले दुनिया में मशहूर होते थे अपने हाथ के काम के लिए, वो अब बहुत सफ़र कर रहे थे क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही थी। एंड ऑल दिस लेड टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत ही पिछड़ापन आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत लो था, देश में बहुत गरीबी थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, लोगों के लिए खाने के लिए ज़रूरत का सामान नहीं था, और हम मेजरली अपनी ज़रूरतों के लिए विदेशों पे डिपेंड कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन in the comment section.